ਨਾ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪੂਰੀ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਨਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਕਿਦਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। पेस्टिसाइड की दुकान करी अपने कत्ल शहर में। अच्छा, पहले आपने दुकान करी पेस्टिसाइड की? हाँ, पेस्टिसाइड ये सीड पेस्टिसाइड ये आपको सारे रासायनिक कीटनाशक दवाइयां होती हैं जो मैं उसको बेचता था। मैं तो पीछे बैठा, आप बेचने वाले थे? मैं बेचने वाला था। मैं एक तरह से मैं उसके बाद इसको आपका भागीदारी मांगता हूं। तो बातें पता चला ना उस टाइम, तो देखो रोजगार कर रहे हैं, दुनिया कर रही है ना, दुनिया कर रही है। उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी लोगों को। आगे आगे करते रहेंगे। उस टाइम तो बोल के जहर बहुत ज्यादा और हो पहले उस दवाई से बैठे बैठे ना कोई ठीक होगा, कोई बैठे रहे आसपास, छोटी दुकान थी तो चढ़ गई दिमाग में, तो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा साइड इफेक्ट हो गया। फिर जान कैसे बची? तो मतलब ये है कि लोग, और मैं दुकान में तो बीच में बैठा रहना था, तो जिसको मतलब सवारी बस में बाहर रखना पड़ता था दवाई को, वो हम खेतों में डालते थे। वो हम खेतों में डालते थे, और मैं लाके जुगाड़ करता गया, तो कुल मिला के ये निकला कि समस्या कहीं ज्यादा नहीं, समस्या ज्यादा है जमीन की। अगर आपका पेट ही खराब है, आप चाहे कितने भी टोने खा जाओ, कितना घी पी लो, कितना दूध पी लो, हजम नहीं। कितने प्रकार की आप दवाई तैयार करते हो? कुल मिला के जी फार्मूलेशन 6 फार्मूलेशन है, अलग अलग जमीन के लिए अलग अलग होता है क्या सिस्टम? जमीन का और फसल का कोई मतलब नहीं है। हमने फसल से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई फसल ले लो। बागवानी आगे जिस तरह हमारे देख लो कि आपके और फाजिलका से लेके फतेहाबाद तक तो बागवानी के किसान थे ना, जिनको साइंटिस्ट एक आता है तो उखाड़ दो, खत्म है, जो खत्म है। आज वो बाग फल दे रहे हैं, 10 साल के बाद फल दे रहे हैं। अब उसने कहा भी तो ऐसा कर ले, ये 100-150 रुपए की बोतल में डाल, इसको 100-150 रुपए लेने लग जाए, इसके सारे ले ये किसान का है। तो फिर मैंने अपने बोतल ले आया दिल्ली से, कि 100 बोतल ले आए, उसके बाद इसको बनाते गए, डालते गए, किसानों को देते गए, खर्चा भी देखो, फिर उसके बाद खर्चा निकलना शुरू हो गया। एक खेत में कितने डालते हैं? 1 एकड़ में 1 लीटर डालते हैं। 1 लीटर बस। उसके बाद हमने क्या किया कि जो कहते हैं फोरेट का मरा हुआ बंदा किसान भी है, कोई भी आज बचा नहीं, इतना खतरनाक। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪੂਰੀ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਨਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ ਸੀਐਮ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਕਿਦਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੂ। ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ बंदिया के डॉक्टर नहीं, जमीना के डॉक्टर ने। ईश्वर सिंह जी हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी जो जीवन का ये ऐसी क्या घटना होगी जिंदगी में कि आपको एक आम सा इंसान थे, आप 10वीं पास आम से एक काम मजदूरी करने वाले थे, तो आज एक साइंटिस्ट बन गए हो, एक डॉक्टर बन गए हो, कैसे? जी अब डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा है कि 10वीं पास हो कोई डॉक्टर वैसे भी नहीं कह सकते। नहीं, हम तो जमीनों के डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि आपने दवाइयां ऐसी तैयार की हैं। देखो ये तो एक देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड है, वो किस नजरिए उसको देखता है। हाँ जी, हाँ जी। आपको अच्छा लगा तो मेरे को आप अच्छा कहो, मेरे को आप अच्छा लगा मैं आपको अच्छा बिल्कुल कहूंगा। बिल्कुल सर, ये तो अपने नजरिए पे डिपेंड करता है जी। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे पसंद में ना हो, हाँ वो एक अलग नजरिए की बात है। बाकी ना तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा और ना मैं कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ। ओके जी। मतलब अमीर के घर में पैदा तो हुआ नहीं भाई, सारा कुछ फैसिलिटी थी मेरे पास, है कुछ नहीं था। जैसे आम किसान होते हैं गांव में, वैसे किसान के घर में पैदा हुआ। इसी सामने वाले स्कूल में ये 10वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल करी। ये सपने थे बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, बहुत बड़े बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था जी। उसके बाद उस सालों में ना, ये 88 के आसपास की बातें हैं, 80 के दशक की बात है, जब हमारे यहाँ फ्लड आती थी। हाँ जी, तो यार सारे ये सब लोग हम धान लगा के आते हैं और रात को फ्लड आती है, सारा धान उखड़ के हमारे ढाब जोड़ बोलते हैं, उससे होकर निकल जाती है आगे। यानी हर साल उसके बाद गेहूं की बिजाई भी नहीं होती क्योंकि पानी पत्थरी नहीं आनी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वही आपका एक संबल होता है। एक किसान के तो पास जमीन ही है ना, आपकी जमीन आपके फ्लड में आ गई तो क्या करोगे आप? उसके बाद आदमी हाथ पाँव मारता है, परिवार है आपका, शादी होगी, बच्चे भी हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके बाद दिल्ली में गया, को नौकरी मिल जाए, ड्राफ्ट्समैन का अपना डिप्लोमा उठा के निकल लिया। तो सबने ये सलाह दी यार ऐसी नौकरी तो कोई है नहीं, ऐसा कर एक बंदा जान पहचान का मिला कि मैं तेरे वकील के पास लगा देता हूँ, तेरे को वकील के पास चलो जी, कुछ तो मिलेगा ही। 300 रुपये उसमें बहुत बड़े होते, 300 रुपये जी रहना खाना फ्री हो गया था। बिल्कुल जी, ना जी। तो उनके पास एक महीने काम किया, तो कुछ स्टाफ के साथ कुछ ऐसा, पता नहीं, ये मेरी आदत नहीं थी नौकरी करने की। मेरे ख्याल में मुझे तो ये लगता है कि मेरी नौकरी करने की आदत नहीं थी। यस सर वाला शायद मुझे कहना रहता, बॉस सामने वाले को बुरा कहने के बजाय अपने आप को, भाई मेरे को आदत नहीं, बस एक बॉस इज ऑलवेज राइट। ये एक कहना है, जहाँ सर्विस जॉब का एरिया ना, वहाँ ये स्लोगन चलता ही है। लेकिन मेरे को नहीं लगता बॉस इज ऑलवेज राइट, यही बात बिगड़ गई, मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा जी। तो वही अपना दिल्ली का रोशना रोड, वही पहले सिनेमा के सामने पुरानी सब्जी मंडी, सबको बहुत लोगों को पता है, वो तो पुरानी दिल्ली का एरिया। तो वहाँ अपने हरियाणा और पंजाब के थे, अपने मित्र थे, सारे ड्राइवर थे, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ थी। नौकरी के टाइम भी शाम को भी उठ बैठ जाते थे, दोस्ती हो गई थी। तो कुल मिला के सारा सी है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर तेरे को चाय बनानी आती है, या चाय वाले की बहुत जरूरत है, तो यहाँ पे एक खोखा रख ले, चाय की फटी लगा ले, रेडी लगा ले, हम तेरी हेल्प करेंगे। इतना सारा बहुत होता है जी। काम करने की अपनी आदत थी। काम तो मैंने कोई, चाहे कुछ भी काम हो, काम चाहिए, गलत ना करो, ईमानदारी से कमाओ, चाहे भूजा ढो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, काम करके खाने में कोई बुराई नहीं। जे अगर हमारे गांव में पता चलता है ना ईश्वर सिंह वहाँ चाय बना रहा है, 2 लोग झूठे बर्तन धो रहा है, तो आपका एक जो नकली सम्मान है ना, उसको ठेस पहुंचती है। लेकिन सम्मान से पहले आपको पेट देखना पड़ेगा, या तो अपना पेट देख लो या अपना सम्मान देख लो। बिल्कुल जी। ठीक है जी। मैंने चाय की दुकान भी कर ली, बहुत बढ़िया रोजगार चल रहा। दोनों भाई को बुला लिया था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वहां से उठ के संजय गांधी नगर आ गई, वहां से जगह उठ गई, गाँव में आ गए। एक दोस्त के साथ सीड पेस्टिसाइड की दुकान करी अपने कत्तल शहर में। अच्छा, पहले आपने दुकान करी पेस्टिसाइड की? हाँ, पेस्टिसाइड, ये सीड पेस्टिसाइड, ये अपने जो कीटनाशक, सारे रासायनिक कीटनाशक दवाइयां होती हैं, जो अपना शहर का था दोस्त, उसकी जो जमीन को जहरीला करती हैं। थोड़ी पूंजी मेरे पास ही, थोड़ी पूंजी उसके पास से मैंने लगा ली। तो इस सन में शायद 92-93 की बात है। तो हम दुकान में जैसे बैठे होते ना, कोई ड्रम लीक हुआ, कोई ये फोरेट आती थी, बहुत खतरनाक जहर होता था उस टाइम पे। बस के अंदर अगर सारी बस में रखती है, या तो सवारी उतरी या थैली को बाहर निकाली, तो बस की छत पे रखते थे दवाई को, बस में, जो खेतों में डाली जाती थी। खेतों में डाले, अगर बस के अंदर 5 किलो को बैग रख दिया तो सारी बस के अंदर बेहद बदबू फैल जाती थी। ओके, इतना खतरनाक उसका फैक्ट भी पड़ता था, उसका फटता। लेकिन उस टाइम बाद लोगों छत पे रखते थे ना, बस में अंदर रखता ही नहीं था कोई भी उसको।
उसके छत पे रखो भाई, इसको अंदर नहीं रखना है। और मैं दुकान में तो उनके बीच ही बैठे रहना था, तो मेरे ऊपर जिसको मतलब सवारी वाली बस में बाहर रखना पड़ता था दवाई को, वो हम खेतों में डालते थे। वो हम खेतों में डालते थे और मैं उसको बेचता था, मैं उनके बीच में बैठता आप था। बेचने वाले थे? मैं बेचने वाला था, मैं एक तरह से मैं उसके बाद इसको पाप का भागीदारी मानता हूँ मैं। तो बाद में पता चला ना, उस टाइम तो देखो रोजगार था मेरा ना, ये दुनिया कर रही है ना, अब भी कर दुनिया रहे कर हैं, रही थी उस टाइम, अब भी कर ना रहे इतनी हैं, नॉलेज भी नहीं थी लोगों को। आगे आगे भी करते रहेंगे। उस टाइम तो जी बोल के जहर और ज्यादा बिकते थे बोल हम्म। के। अब तो जो ये फोरेट बैन हो गया, अब तो उस टाइम तो बहुत बिकता था ये। तो उसका साइड इफेक्ट हो गया जी, मतलब कुल मिला के पक्का बीमार हो गया, हम्म। सारी उम्र के लिए बीमारी का ठप्पा लग आपको गया। पहले आप बीमार हुए पहले हाँ उस हाँ दवाई हाँ, से? उससे बैठे बैठे ना कोई लीक होगा, वहीं बैठे रहे आसपास, छोटी दुकान थी तो चढ़ गई दिमाग पे, तो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बुरा साइड इफेक्ट हो गया था। फिर जान कैसे बची तो आपकी? मतलब ये है कि लोग कहते थे कि फोरेट का मरा हुआ बंदा किसान भी है, कोई भी आज तक बचा नहीं कोई भी। इतना खतरनाक जहर था वो, अगर फोरेट से कोई इफेक्ट हो जाता है तो उसके बचने के चांस बहुत ही कम होते थे, लेकिन मैं उससे बच गया था मैं। चलो, उसके बाद घर आ गए जी, फिर थोड़ा शरीर का कुछ बैलेंस ठीक हुआ, वर्कशॉप लगाई गाँव में, रोजगार तो करना ही था। एक दो मिस्त्री, अपने मिस्त्री टाइप के दोस्तों में साथ जान पहचान थी, उनके साथ मिल के अपने खराद वेल्डिंग वगैरह वगैरह इस तरह का अपना टायर पंचर से लेके सारे काम होने शुरू कर दिए। धीरे धीरे को खुद भी काम करना सीख लिया, सारे काम को मजदूर के भरोसे, क्योंकि काम की अपनी आदत थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जिस पेस्टिसाइड ने मेरे पे इफेक्ट किया था, नफरत तो देखो दिमाग में होगी, ये पहला सुख निरोगी काया, हाँ जिसने आपकी काया ही आप रोगी कर दी हो परमानेंटली, तो उससे तो आप देखो हाँ। को प्यार मोहब्बत आप फिर कर नहीं आपने, सकते। आपके मन में आ तो गए मैंने समाज खेतों से निकालना है नहीं, उसके इसको? बाद तो मैंने खेत में डाले ही नहीं कभी, इफेक्ट होने के बाद जब आया नहीं, क्योंकि एलोपैथी की जो दवाई है ना वो भी इतना इफेक्ट करती थी, वो खेतों की दवाई अगर कोई खेत में डाले रखे किसी ने, मैं खेत से निकल गया गलती से तो उल्टी आ जाती थी मेरे को, मतलब एक तरह सहन शक्ति खत्म हो गई, शरीर की इम्यूनिटी पावर जीरो हो गई थी। हम्म। तो ये तभी बड़े बड़े आइडिया आते हैं आदमी को कि शायद कोई चक्कर घूम रहा होता है, चक्कर पूरा होना होता है, कोई टाइम होता होगा कोई, तो बस भाई। उस रब की। हाँ हाँ, बस बस बस, ये मैं तो मानता हूँ इस बात को। तो भाई जहर जो खेतों में हम डाल रहे हैं, मैंने कुल पड़े पड़े ये निचोड़ निकाला कि उनकी हमें कोई जरूरत नहीं, हम खाम खा बेच रहे थे बिल्कुल, बिना बिना बात के डाल रहे हैं। बिना बात के डाल रहे हैं। क्योंकि उसी दौरान जब मैं क्यों मेरे नफरत होगी, मैंने मेरे खेत में डाले ही नहीं, तो मेरे खेत में पड़ोसी डाल रहे हैं, सारे डाल रहे हैं, मेरे खेत में मैंने डाला नहीं, कोई नुकसान नहीं है, फिर क्यों डाल रहे हैं लोग इसको। हम्म। मेन प्रॉब्लम क्या थी फिर उसके बाद, तो देखो इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, मैं रिसर्च कह लो कुछ भी कह लो, उखाड़ पिछाड़ करता गया, जड़ी बूटियाँ इधर उधर ला के जोड़ जुगाड़ करता गया, तो कुल मिला के ये निकला कि समस्या कहीं ज्यादा नहीं, समस्या ज्यादा है जमीन के अंदर। अगर आपका पेट ही खराब है, आप चाहे कितने भी टोनिक खा जाओ, कितना घी पी लो, कितना दूध पी लो, हजम कुछ होगा ही नहीं, नहीं, हजम नहीं होगा। बीमार करेगा आपको। और कोई? वही कर दिया जी, फिर मैंने कुछ अपने साइंटिस्ट दोस्त, बड़ा पुरानी की दुकान में जो बैठते हैं ना, दोस्ती हो गई थी, तो उनसे भी मैंने डिस्कस करी, और जान पहचान मैंने फील्ड में फिर मैंने घूमना शुरू कर दिया, पुराने फिर किसानों से मिलना, उनसे मिलना, ये नहीं एक तरह से मैंने सर्वे भी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, जमीन का तो पता चल गया। कुल मिला के ये निकला कि जब हरित क्रांति आई 50-60 में, तो हमारा सारा जो टोटल डिपेंडेंस थी सारी यूरिया डीएपी यानी कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड और हम्म, फर्टिलाइजर पे होगी, होगी। गोबर खाद और ये चीजें धीरे धीरे कम होती गई, उनकी तरफ लोग बढ़ते गए, क्योंकि फटाफट इलाज था। हाँ जी। एक एक आपने बैग उठाया और छिटा मार दिया, उसका 50 किलो का पानी खेत में निकल गए। अब गोबर में कितनी मेहनत है, पहले उसको 2-3 साल सड़ाओ, फिर उसको खेत में ढो, फिर खेत में बिछाओ, फिर मिलाओ, मेहनत छूट गई ना किसान की। हाँ हाँ, हाँ। आसान आसान दिख गया उसको, ये किसी को नहीं पता होता। आज जो आप थेरेपी, आप जो भी चीज टेक्निक अपना रहे हो, आपको क्या पता इसकी फ्यूचर में क्या इसके फ्यूचर इसके इफेक्ट पड़ेंगे। कितने इफेक्ट पड़ेंगे। तो हम्म। किसान की पैदावार बढ़ती गई, हरित क्रांति मतलब इतना कमाल कर दिया इंडिया के फार्मर्स ने हरित क्रांति की इस लेवल पे, कि जो पहले हम इंपोर्ट करते थे गेहूँ, एक टाइम वो आ गया कि हमारे गोदाम भर गए, गोदाम भरने तक का जगह नहीं बची, एक्सपोर्टर बन गए हम। ठीक है जी, बन गए हम, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि एक तो जो हमने पैदावार बढ़ा ली, अन्न उत्पादन किया, अन्न दाल जो भी है, सब्जी जो भी है, क्वालिटी खत्म हो गई, क्वांटिटी पे आप चले गए लेकिन क्वालिटी आपकी खत्म हो गई। जो आप खा रहे हो, हम खा रहे थे, वो सारा सारा एक तरह से उसके अंदर सारे केमिकल हैं, उसके अंदर सारे जहर भी हैं, और लेकिन जो पौष्टिक तत्व होने चाहिए, पूरे 16 तत्व होने चाहिए, वो तो है ही नहीं उसमें। फिर आप आपने ऐसा, पेट पेट भर रहे हैं ना बस। फिर आपने तैयार किया? तो फिर मैंने ये करते करते तो चल ही रहा था काम। तो मैंने ये नोट किया अपनी ज़मीन पे, तो मैंने करता गया भी मेरी ज़मीन में बहुत सुधार हो रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप सुधार हो रहा है। डीएपी यूरिया वगैरह की मात्रा की डिमांड कम होती जा रही है, पेस्टिसाइड की तो कोई इंसेक्टिसाइड की जरूरत है ही नहीं। अच्छा।
पहला काम तो ये है ना, आप देखो यूरिया डीएपी क्या है कि आपने आदत डाल रखी है, 50-60 साल से डाल रहे हो, गोबर आपके पास है नहीं, गोबरी खाद नहीं, हरी खाद नहीं, आप करते मेहनत, आप करके राजी नहीं। तो हमने क्या करना है कि जो उसकी एक वास्तविकता थी भाई, आपने 20 किलो में 30 किलो में जो काम चलेगा, आपने उसको 200 से 300 किलो ले दिया। हम्म। खासकर हमारे जो बड़े किसान थे, खासकर तो कहते हैं मॉडर्न किसान, जैसे हमारे पंजाब को पकड़ के चले, तो वहां से आई थी ना सारी, ज्यादा ज्ञान वहीं से आया। तो वहां के फार्मर जब मिला तो पसीने आते थे सुन के, देख के, कोई आइडिया नहीं कितना डाल रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी वगैरह से, और मैंने भी टेस्ट करके देख लिया, 80-90 किलो अगर यूरिया हम अपने खेत में एक फसल में डालते, चाहे गेहूँ ऐसा धान है, तो पैदावार पूरी होगी, कोई इसमें डाउट नहीं। लेकिन 80-90 का आपने 300 किलो कर दिया, उसमें क्या होगा कि यूरिया डालने से क्या होगा, एक वेजिटेबल ग्रोथ होगी, बस आपका पौधा बढ़ेगा, पौधा कद बढ़ जाएगा, लेकिन जड़ और तना कमजोर होगा, जड़ें कमजोर होगी, आपका जो दाना बढ़ेगा वो भी कमजोर होगा। तो मैंने क्या किया कि एक तो किसान को अब सीधे जैविक पे लेके जाओ, ऑर्गेनिक खेती करो, जहर मुक्त खेती करो। जहर मुक्त तो मैंने कर दिया अभी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, ये तो सोल्यूशन मैंने दे दिया। ये सोल्यूशन है, सारे सोल्यूशन है जी इसमें, सारे सोल्यूशन है दवाई। सारे जमीन से लेके और ऊपर तक का तैयार मतलब कैसे सर, ये तैयार कैसे किया आपने फिर इसमें, ये सब ऐसा क्या डाल रखा है इसमें सारी वही जड़ी बूटियां, कोई ऐसी कोई कह रहे चमत्कारिक साइंस नहीं है जो कोई एलियन लेके आया, अपनी धरती की साइंस ही है, अपनी रसोई से लेकर अपने वैद्यों तक पड़ी हुई अपनी है। रसोई से उठा के सामान सारा, बस अपने खेत से उठा के उसी से तैयार बस किया। आम जिस जैसे ना, मेरे पास तो मैंने शुरू में आइडिया कहाँ से लगाया, हाँ जैसे नीम है, नीम का सबको पता था। हाँ जी। फिर मैंने करता करता करे ये देखा भी, जिस चीज को ना तो आदमी छेड़ता ना पशु छेड़ता है, कुछ ना कुछ गुण है उसमें। ओके। तो हम जहर क्यों डालते हैं खेत में, प्रिवेंटिव के लिए, किसी कीड़े से बचाने के लिए डालते हैं ना। तो आग को कोई पशु नहीं खाता, को आदमी नहीं छेड़ता, तो इसके अंदर गुण है, तो मैंने आग को छांट दिया। फिर अच्छा। मैंने धतूरे को छांट दिया। फिर मिर्च की तरह का होता है, उसका नाम तो साइंटिफिक नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, हमने उसका, क्योंकि मिर्च के जैसा होता है ना, झड्डी निकली होती है, मिर्च बूटी है, वो छांट लिया। हम्म। पहले मैंने आसपास की चीज छांटी, हल्दी पकड़ी, हल्दी के गुण सबको पता ही है, किसी पूछने की जरूरत नहीं थी, अपने रसोई की चीज थी ये तो। हम्म। इसके बाद इन पे रिसर्च करते करते फिर मैंने अपने दिल्ली से किताब मिली मेरे को, वही लाल किले के पीछे वाली मेरी पुरानी मार्केट। अच्छा मैं तो अपनी अपनी मार्केट मानता हूँ कि मेरी चाय की दुकान का सामान मैं वहीं से लाया अच्छा। था। अच्छा। तो वहाँ पे पुरानी किताबें मिलती थी, उसका कोई आगे 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 पिछले पेज सारे गायब थे, यानी हेडिंग, लेकिन किताब मिल गई मेरे को, आयुर्वेद पे थी कि जड़ी बूटियों पे जो वनस्पति है ना, पेड़ पौधे हैं, इनके क्या क्या गुण है, अच्छा। वही चाहिए थी मेरे को। पढ़ने की आदत मेरी पुरानी थी, मैं अपनी किताब, स्कूल की किताब के बजाय नावल और मैगजीन वगैरह ये पढ़ने की आदत थी मेरी, अखबार पढ़ने की पूरी आदत थी, वो काम आ गई। तो मैंने पढ़ पढ़ के ना जी, पहले फिर मैंने बाजार से 10-20 रुपए की सारे के यहाँ से लाया, बना बना के देखी, इतने पैसे होते थे ना। अच्छा, ये थोड़े थोड़े पैसों से जाना, थोड़े थोड़े गोल 100 बनाते ग्राम, रहे, थोड़ी थोड़ी 50 बड़ी ग्राम, बूटी 100 ग्राम इकट्ठी दिया, करके। उनको फिर बनाता गया जी, करते गए, ट्राई करते गए। फिर थोड़े से जेब में पैसे हो गए। दिल्ली जब मैं पहली खरीद करने गया था, 600 रुपये खरीद थी मेरी। 600 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, ये 2000 से पहले की बातें है ना। अच्छा। तो वहाँ से उसके बाद मैंने फार्मूले को मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया, 20-20 से 50 लीटर बन गया, धीरे धीरे करते करते दोबारा घर का जोड़ा। फिर अपने खेतों में, फिर अपने आसपास के, यानी 20-30-50 किलोमीटर दूर जाके मैं वहीं किसानों से बात करता था, क्योंकि आसपास के तो लोगों ने मेरे को मेडल दे दिया था, वे पागल आपको ऐसा क्या की कुछ है तो बोलते थे? इसके बच्चों कौन पालेगा, ये तो मरेगा, फला है, अपने गाँव में चलती रहती है, ये तो जी नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इनकी परवाह नहीं करी। मैं तो एक टेक्निक पकड़ी, जो आप खच्चर देखते ना रेडी में, हम्म। देखा जान से कभी आपने, नहीं किसी ने देखा उसको, उसके ये पट्टी बंधी होती है ऐसी, अच्छा अच्छा, चमड़े वो की चीज पट्टी बंधी ऐसी होती होती है, है, अगर हाँ। उसको ये खोल दो तो आपको वो मतलब एक्सीडेंट करेगा ही करेगा, करेगा। पड़ोसी उसको निकलेगा और डरेगा फिर एकदम। तो उसको उसको बचाने के लिए भाई आप सिर्फ सामने देखो, दाएं बाएं देखोगे तो आप ये खच्चर भी रेडी को नहीं चला सकते, तो आप कैसे चला सकते हो? आपके पास तो हजारों लोग हैं सलाह देने वाले, आप हम्म। इतना उंगली करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मैंने इस खच्चर आइडिया को पकड़ा, अपने लाइन पे चलता रहा, लोगों ने कुछ भी कहा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं फालतू। मेरे को तो ये पता मैंने काम करना है, मेरे को आइडिया मिल गया था, मैं कर लूंगा इसको, कोई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, एक रास्ता तो मिल गया है मेरे को। हाँ। हाँ, उसके बाद ये जड़ी बूटियाँ कुछ निकलती गई, जुड़ती गई, 15-16 जड़ी बूटी पे छट के फिर मतलब चीज़ ऐसी बन गई, जिस खेत में किसान के मैंने बाहर जाके ट्राई किया, सबके मुंह से एक ही शब्द निकला, कमाल है। अच्छा, तभी इसका नाम हाँ, कमाल है। तब नाम ये नगूरा के, अब तो स्वर्गवासी हो गए, कृष्ण सैनी जी थे, बहुत अच्छे किसान थे, उन्होंने मेरे को एक चैलेंज दिया था 1 एकड़ का, वहाँ नगूरा गाँव में। अच्छा अच्छा। गरज जी इसमें जी सारी मंडी की जितनी भी दवाइयाँ की दुकान है, सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी है, और ये खत्म है, हम खत्म इसमें आ गए लिखा इसको। हुआ है रासायनिक जहरीली कृषि के विरुद्ध अंदोलन। आंदोलन था एक तो ये किसान अंदोलन करते आ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ये ਅੰਦੋਲਨ हमारा छेड़ा है अपना ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ आंदोलन खेती किसी के पे है खिलाफ। जी। पहले पर्सन ने बस भारत 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ रासायनिक खेती के खिलाफ अंदोलन ਛਿੜਿਆ।
इस आंदोलन के दौरान आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना देखो पड़ा जी, जी? मुसीबतें तो अगर बताने लग जाऊं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन इतना है कि जिसके खिलाफ एक आपने, मेरे को नहीं पता था कि मैं किसके खिलाफ चल रहा हूँ, मैं तो दिमाग में था ही नहीं, मैं तो जहर के खिलाफ, मेरे खेत में जहर नहीं मैंने डालना भाई। आप मैंने इतनी अब बड़ी मेरे कंपनियों के सर्कल में थे, मतलब फिर कि वो धीरे धीरे क्या हुआ कि दूसरे लोगों को ये लग गया, जो बड़े लोग थे वो दूर की सोचते हैं, वे कल कोई बंदा तंग कर सकता है अभी, क्योंकि मेरी जैसे आसपास के, मैं कैथल के आसपास मेरे पुराने क्योंकि मैं जब दवाई की दुकान करता था, मेरे किसान मित्र थे ही, उनके बाद जाता किसान को टेक्निकल का नहीं पता, इमीडा कलो ब्रीड किसी को नहीं पता, लेकिन कंपनी के नाम का उसको पता है। तो मैं ट्रेड मार्क से बताता हूँ उनको भाई, ये क्योंकि ट्रेड मार्क ही जानता है किसान, वे फलानी दुकान से लेते हो, ये बाजार की चीज़ है, इसके हमने कोई जरूरत नहीं, इसके बिना यार इस बोतल से काम कर सकते, तो भी घर बना लो, बना सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उससे तो मार्केटिंग वाला को, बाजार वाला तो दिक्कत था ही नहीं, आइडिया कोई भी, कोई बड़ा बना के दिखाया जी, मैंने सबको ट्राई भी किया, तो सबने कहा भाई तो ऐसा कर ले, ये हम तो सुधरने वाले हैं नहीं, अपने मुंह से कही थी किसानों ने, अच्छा। हम तो बनाने वाले हैं नहीं। तो हम्म। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा भी तो ऐसा कर ले, ये 100-150 रुपए में एक बोतल में डाल, इसको 100-150 रुपये लेने लग जाए, इसके सारे ले लेंगे। ये किसान का आइडिया था ये। तो फिर मैंने अपने बोतल ले आया दिल्ली से, खींच के 100 की बोतल ले आए, उसके बाद इसमें बनाते गए, डालते गए, किसानों को देते गए, खर्चा भी देखो, फिर उसके बाद खर्चा भी निकलना शुरू हो गया एक मेरा। खेत में कितने डालते हैं सर? 1 एकड़ में एक एक ही लीटर डालते हैं बस। 1 लीटर बस? उसके बाद हमने क्या किया कि जो, अगर जैविक और आयुर्वेदिक का मैंने लाभ लेना शुरू किया, ये आयुर्वेदिक है जी, देसी है, जड़ी बूटियों से बनी है, तो किसान एक तरह से धक्के मार के बाहर निकालता है, क्या दिमाग खराब बना कर, पहले खेती करनी बहुत मुश्किल है, हमारा अच्छा। दिमाग खराब मत कर, हम जैसे करें खेती कर रहे थे। तो फिर मैंने दूसरा दूसरा ट्रेंड पकड़ा भाई, उसी के दिमाग पे किसान को भाई, एक बोतल है इस तरह की, हम्म। बाजार में जो बोतल है वो भी इस तरह की है, हम्म। ठीक है ना, तो किसान को बोतल के बदले बोतल दे दो, कुछ ना बताओ उसको, हाल तो आपने सलाह थोड़ी देनी है, आपने समाधान देना है। बिल्कुल। आप क्यों भाषण देते हो, इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं जी, ये आयुर्वेद है जी, ये फला है जी, जिनका उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं, मानना है किसान को। हम्म। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बोतल को रिप्लेस कर दिया, उस बोतल की जगह बोतल उसी देना की तरह स्टार्ट की कर? लेबलिंग है जी, उस तरह की बोतल है, आप जी ये डाल रहे हो, क्लोरोपायरीफास डाल रहे हो आप, ये डाल के देखो, कुछ नहीं बताया उसके बारे में ज्यादा, अच्छा, दे दी, ऐसे दे दे दी? दिया, ऐसे दे दिया, रिजल्ट बम्पर आने आने थे, ऊपर वाला क्या था, आशीर्वाद भी तो था इसमें अच्छा जी। जड़ी बूटी आयुर्वेद सब कुछ था, हाँ हाँ। रिजल्ट बम्पर आ गए जी। बस फिर तो एक तरह से ना, मतलब किसानों के बीच में हो गया वाकई कितनी कमाल। पैदावार बढ़ी? कितना पैदावार भी बड़ी, कितना पहली खर्चा कम हो गया? पहली बात यह है कि जो किसान मान लो क्लोरो डालता था, हाँ जी। उसका कुछ उसको दिखता नहीं था, ये डालता भी, दीमक है खेत में, दीमक है या नहीं इसी बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन डालनी है, डालनी है। डालनी है। और पड़ोसी डाल रहा है, मैं भी डाल रहा पड़ोसी हूँ। डाल रहा है, मैं भी तो देखा देखी है, ये तो सारे खरबूजे हाँ। खरबूजा देखे तो रंग बदलेगा ही। तो बिना बात के जब, डाल रहे लेकिन बस? जब उसने इसको डाला है, क्लोरो डली हुई है, दोनों साइड में क्लोरो डली, बीच में ये डली है, तो हाँ। इसने अपना रंग 72 घंटे में दिखाना शुरू कर दिया, अच्छा, 72 घंटे में रंग सर? रंग बदल दिया। उसके बाद उसका कद कद बढ़ा गया, और मतलब खेत में सिरे में खड़े होकर देखता ना किसान, दिल लगता है यार, कमाल इतनी बढ़िया है यार, हम्म। पड़ोसी देखे उसको देखे। उसके अच्छा, बाद उसके जहाँ बाद ये डालने से हाँ, इतना फर्क पड़ गया? उसके बाद फिर जमीन, क्योंकि तो जमीन बिल्कुल लक्कड़ जमीन हो गई सारी, एक बार पानी काट दिए, जीरी लगा दी, उसके बाद तो मतलब समझ लो कि पानी पीने का मतलब ही नहीं था, पानी सड़ने लग गया, काई जम गई। तो इसलिए क्या करें, काई को भी तोड़ दिया, जो पर नीचे हार्ड बैड जमीन का एक पूरी हार्ड पर, तो उसके लिए मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं था, मैं साइंटिस्ट तो था ही नहीं, को मैं सोच साइंटिस्ट थोड़ा था, मैंने रिसर्च करी जमीन में घुस घुस के, एक हम्म। मोटे अपने खेती वाले जमींदार वाले आइडिया थे, यार बड़ी पत्थर जमीन हो गई यार, पानी नहीं सोखती, देसी वही देसी स्टाइल थे अपने वाले। तो 3-4 दिन के बाद देखते हैं खेत के अंदर पानी नहीं है, सारी सारी काई टूट गई, और जीरी में फुटाव इतना है, पानी नहीं है, पड़ोसी खेत में पानी भरा है, इसमें पानी नहीं है, लेकिन फुटाव निकल रहा है, उसका फुटाव वही का वही खड़ा है, और उससे पहले इसने फुटाव लेना शुरू कर दिया, कद बढ़ाया। उसके बाद जब पैदावार पे गए, तो पैदावार तो बढ़नी थी, 15-20% तो ऑटोमेटिक कम से कम थे। तो उसके बाद हमने खर्चे भी आए, इफको हैफिड ने खर्चे पे टेस्टिंग करी, भी कम से कम 47% तो लिखित में दिया, खर्चा कम हुआ किसान का, तो फिर अपने 47% खर्चा कम हो गया, हाँ, पैदावार कितनी बड़ी? पैदावार समझ लो कि जैसे मैं, मेरी तो बहुत ज्यादा है, अच्छा जो जी। मैं, मेरी और मेरे किसानों की तो बहुत ज्यादा, लेकिन हम कितनी है आपके किसानों का अपना हम होगा? उसको क्लेम नहीं करेंगे। वजह क्या है कि जब तक आपके पास A4 साइज का पेपर हो, नीचे को गोल्ड स्टैंप ना लगी हो, हाँ और हाँ। वहां को सरकार फलाना ना लिखा हो, तब तब तक तक आपको लोग विश्वास नहीं तब करते? तक कोई मानता ही नहीं। मानता है नहीं जी? ठीक है जी। हाँ जी। तो जी जब मेरे को पहला इनोवेशन यानी नई खोज का पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति APJ कलाम जी से, हाँ, वो अब्दुल फोटो कलाम जी भी से आपके मुलाकात पास है। हुई, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, उसके बाद हौसला बढ़ गया। दूसरी बात ये, जो विरोधी लाभी थी, जिसने 2004 में मेरे ऊपर दफा 420 का केस लगवा दिया था, कैसे भुगत रहा था मैं उस टाइम, जब मैं अवार्ड लेके आया। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो मैंने इससे डरा, फिर तो मेरे पास संभल हो गया, वहां से मैं राष्ट्रपति भवन से मेरे को पूरी एक तरह से बैक सपोर्ट मिली।
हाँ, मुर्गी राष्ट्रपति है। वह गेट नंबर 35 है, फिर आगे गेट नंबर 8 से मुगल गार्डन होता है, नाम बदल दिया, पता नहीं क्या रखा होगा। तो वहां तक का एक तरह मतलब सिर्फ गेट पे जाके फोन ही करना था, इसमें कुंडू आया कैथल से, बस इतने काफी था। राष्ट्रपति भवन में घुसने का इससे बड़ा क्या चाहिए आप? संबल मिल गया जी, सारा मिल गया, आपको भरोसा हो गया आपकी चीज सही है, 10 लोगों ने मान लिया आपकी चीज सही है। उसके बाद जी सर्टिफिकेट के लिए हमने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने टेस्टिंग करवाई लोगों को सलाह देके। तो वहाँ जब रिपोर्ट आई है तो उन्होंने भी मतलब शाबाशी बोला था, और एक पैसा फालतू नहीं लिया, फीस मेरी आधी माफ करवाई। सर बेस- कितने प्रकार की आप दवा तैयार करते हो? ये कुल मिला कमाल। के जी फार्मूलेशन 6 फार्मूलेशन है, शेयर अलग फॉर्मुलेशन अलग है। दूध के, जिस तरह अलग हमने अलग जमीन के लिए अलग है अलग ना, होता है क्या सिस्टम नहीं के? नहीं, जमीन का और फसल का कोई मतलब नहीं है। हमने हमने फसल से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई फसल है हो। बागवानी आ गई, जिस तरह हमारे ये देख लो कि आपके अब और फाजिलका से लेके फतेहाबाद इधर तक जो बागवानी के किसान थे ना, हम्म। जिनको साइंटिस्ट ने एक आता कि ये तो उखाड़ दो, खत्म है। ये तो खत्म है। आज वो बाग फल दे रहे हैं, 10 साल के बाद भी फल दे रहे हैं। आज फल दे रहे फल हैं, दे रहे यही हैं, डाला था। क्वालिटी क्वालिटी दे रहे हैं, और खर्चे हो रहे, खर्चे कम हो रहे हैं। सर एक बार इसका एक्सपेंस ज्यादा है कि नॉर्मल है? नहीं देख, जब आप पहली एक चीज मेरी एक एक इनपुट मेरा खरीदते हो, एक प्रोडक्ट आप खरीदते हो, तो आपको लगेगा कि महंगा है, हम्म। होता ही है ना ये। लेकिन जब आप एट लास्ट कॉस्ट निकालोगे फसल कटने के बाद तब लगोगे यार, जब उनका मिला के देखो, इसका मिला के देखो, तो आधा खर्चा रह गया। मतलब ये एक बार डालना पड़ता है, तो दूसरा इस पेस्टिसाइड जो रासायनिक है वो 3-4 बार डालना देखो पड़ता जी, है? एक तो पड़ता है जब किसान मेरे पास आते हैं जी, कितने बार डालना पड़ेगा। अच्छा। एक तो मैंने पड़ेगा शब्द किसान के दिमाग से निकाल लिया कि कोई जरूरत क्या बता, आज आपने डाल दी, क्या बता सारी फसल आपके ऐसे निकल जाए। लेकिन कभी मौसमी समस्या आ सकती है, कभी ज़्यादा जैसे ज़्यादा बारिश होगी तो हमने खड़े पैर इलाज करना है उसका, वो चीज़ें अलग है। आपकी ज़मीन कैसी है, कितनी उसमें एक्टिविटी होती है, कितनी वो कवर होती है पहले पहले सीजन में। अब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं क्या पता जरूरत ना ही पड़े, या पड़े वाला शब्द निकाल दो आप, मैं कितनी बार डालनी पड़ेगी। एक तो मैंने ये वैम निकाल दिया। उसके बाद फंगी साइड पे आए लोग, फंगी साइड का कोई एक एक डर बिठा दिया, फंगस कहीं नहीं, मान लिया फंगस कहीं नहीं, लेकिन फंगी साइड का कारोबार बढ़ा दिया लोगों ने। तो फिर मैंने एक सेफ्टी व्यू के हिसाब से मेरा ये प्रोडक्ट है, और ये दोनों मिला के हमने क्या कर दिया कि चाहे फंगस हो चाहे वायरस हो, ये क्या थे, डर थे। हम्म। कई तरह के डर बढ़ा रखे थे, ऐसे देख के इसमें इस तरह की फंगस है जी, इसमें फाइटोथायरोपिया है जी, इसके अंदर नेमाटोड है जी, इसमें ये है, इसमें वो है। दुनिया भर के भी लंबी चौड़ी किताब बना दी है उन्होंने। तो मैंने क्या, हमने हमने करना क्या था उसमें, लंबी चौड़ी हमारे सिस्टम ही, हमने तो जमीन को सुधारना है, और पौधे के अंदर इतनी ताकत देनी है कि पौधा खुद इसको लड़ लेगा। सर इसको डालने से जहर निकल जाता है जमीन का बिल्कुल? ये तो त्रिफला खाया है ना, हम्म। नहीं खाया सुना तो है त्रिफला का। हम्म। शाम को त्रिफला खाओ तो पेट को फिल्टर कर देगा सुबह तक, ये फिल्टर करता है जी जमीन को सब जहर जमीन निकाल को, देता बिल्कुल। आप ये है। अगर समझो जो कोई किसान चाहता है अभी मैं नेचुरल खेती करना चाहता है, या जहर निकालना चाहता है, वो पेस्टिसाइड से जान छुड़वाना चाहता है, तो बिल्कुल आपका ये प्रोडक्ट यूज करके उसका कोई इलाज हो सकता अब है? तो कहने की जरूरत ही नहीं है, जब तो मेरे को कहने, अब तो हजारों किसान खुद कह रहे हैं। अच्छा जी, कितने किसान आपने मतलब जब तक जमीन अब ठीक तो करा दी? मतलब मेरे ख्याल में कोई स्टेट नहीं बची होगी उधर, चाहे आपने बंगाल में चले जाओ, उधर महाराष्ट्र में निकल जाओ, चाहे गुजरात में चले जाओ, और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हर जगह या मेरे मेरे सर किसान। वैसे देखा जाए तो लोग पेस्टिसाइड रासायनिक खेती को जितनी महंगी भी है, इतनी नुकसानदेह भी है, छोड़ना क्यों नहीं चाहते? एक आज ऐसे से प्रोडक्ट क्यों नहीं देखो जी, बनाना चाहते? एक पहले बात तो एक आदत पड़ी हुई है, दूसरी बात ब्रांड दिमाग में घुसे हुए हैं, एक तीसरी बात एक उनके ऊपर प्रेशर इतना है। यहाँ मान लो किसी किसान में मेरे को कमाल लेके आनी है दुकान से, दुकानदार के पास गया तो दुकानदार बैठा है, उसको कमाल नहीं बेचनी, उसको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो हाँ। किसान का माइंड सेट एकदम चेंज कर देता है। लेकिन जो किसान जिद्दी है, वो तेरे पास रही है, ठीक है, हम कैदर से जाके ले आएंगे, मेरे गांव का नाम सबको याद है। यानी 100, 150, 200 किलोमीटर तक का किसान परवाह करता है दुकानदार को, भाई तू देता है ठीक है ना कैदर। अब तो ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया हमने, ऑनलाइन कहीं पे मिल फोन जाता करो है। आपके घर पे पहुंच जाएगा, टेंशन खत्म। हाँ, हम नंबर भी दे देंगे स्क्रीन पे ना, हाँ, अब जो बिल्कुल कोई भी चाहता है तो आप उसको सर उसको गाइड भी करते हो किस तरह इसको यूज करना है, किस तरह खेत को पूरा भी बचाव, हमारा, जैसे मेरे मेरे दोनों जब बेटे तक हैं, उसका कोर्स चलेगा जब पूरा? तक आपने कोई भी, आप किसी टाइम भी आपको ये लगे खेत के अंदर जाने के बाद भी मेरे को ये समस्या समझ नहीं आ रही है कहानी, उसी टाइम फोन करो, मेरे से करो, मेरे बेटे से करो, कोई सर कोई ये दिक्कत हर नहीं साल है। डालनी पड़ेगी? वही पड़ी गाड़ी से फिर आ जाता है। एक होता है क्या है कि जैसे फसल की कई स्टेज होती है, पहली स्टेज जो आपकी बीज की है, तो अपने बीज के लिए बनाई, क्योंकि जो आधी बीमारी जो बीज से ही आती है, तो हम्म। बीज से बना दिया मैंने, बीज का उपचार कर दिया। उसके हम्म। बाद क्या आता है, जब आपने मान लो अभी धान की फसल का सीजन, धान की बात करेंगे, धान लगाने के 7-8 दिन तक लोगों ने क्या है, क्लोरोफाइसी वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें डालनी है। तो मैंने क्या करना है कि जो उसकी जड़ें बनानी है, वो टाइम है कि जड़ें बनाने का उसका, यानी पौधे को अपने पैर जमाने का और बढ़ने का वही टाइम होता है, वो 10 दिन का जो टाइम है ना,
वो बहुत क्रिटिकल टाइम है। जैसे मौसम गर्म हो गया, पानी भी गर्म हो जाएगा, तो पानी गर्म होगा गलनी शुरू हो जाएगी, तो हमने बचाना भी तो है ना उसको। तो हमने अपने ये बोतल डाल दी 1 एकड़ में, कोई चिंता नहीं, खत्म, कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है जड़ बढ़ने का टाइम होता है, जैसे हम कोर हम्म, बोलते हैं इसको, गेहूं के ना जैसे हमने कोर पहला पानी, हम्म, इसी तरह 20 से और 25 दिन का धान का भी एक ऐसा टाइम होता है। तो उसमें अपना एक क्लैंप होता है, 4 किलो का बैग है अपना, वो डाल दो। हम वो डाल देते हैं। और तीसरी बार जब आखिरी डोज होते हैं लगभग 35 दिन में, तो सिर्फ 2 किलो डालने हैं। यानी कि इसमें क्या करना है कि खाद की जो यूरिया डाला है, क्योंकि हर किसान के पास देसी खाद, गोबर खाद, आयुर्वेदिक ऐसा ऑर्गेनिक सिस्टम है ही नहीं। 99% किसानों के पास कोई मतलब इंतजाम नहीं कि भाई मैं सारा का सारा जो जो फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, सल्फर की जो जरूरत है मैं सारी मैं अपने घर से पूरी कर सकूँ, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ हाँ, तो ये जो पूरी कर देता है। जो किसान यूरिया और यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा पहुंच गई कि वो बेअंत पहुंच गई। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ मैक्सिमम, जैसे बासमती है 50 से 60 किलो सारी फसल में, हमने करना क्या है, उसको 3 तरह डिवाइड करना है उसको। पहले इसके साथ पहली डोज, एक हफ्ते वाली 10 दिन वाली डोज होगी, उसके बाद 20-25 दिन, फिर 35 दिन। आपने 3 बार में डालना है, जबकि इतना तो किसान एक बार में डाल देता है जितना हम सारे फसल में डालते हैं। कम हो गया आपकी। कम हो दूसरी गया। बात क्या है कि इसने उसको डिक्रीज कर दिया, खा गया उसको। इन्हें हम्म, उसको खुराक बना के, क्या कि यूरिया है ना, यूरिया को कोई फसल नहीं खाती। फसल खाने की यूरिया तो खाता नहीं ना, ना नाइट्रोजन सीधा खाएगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट बढ़ेगी तब जाके खाएगा। ये नाइट्रेट आपका रसोईया है, ये जमीन में जाते इसने अपनी कार्रवाई शुरू करनी है, नाइट्रोजन को ये खा के नाइट्रेट बना के पौधे को दे देगा। और फिर पौधों में जब 24-25 दिन में हम दूसरे डाल देंगे, तो पौधे में क्या होगा कि पत्ते में इतनी ताकत आ जाएगी, क्योंकि उसे ज्यादातर खुराक पत्ते ने ऊपर से लेनी है, वातावरण से लेनी है, और वो नीचे जाएगी। नीचे आपका रसोईया होना चाहिए। अब इधर रसोई में सामान भेजा, रसोईया है नहीं, तो बढ़ाया कौन देगा। यानी जमीन को सुधार दो, जमीन के अंदर ऐसा करो, जमीन के अंदर 24 घंटे आपकी एक्टिविटी बने रहे, आपका रसोईया बैठा रहे, जो भी खुराक आप डालो उसको थोड़ी खुराक को भी ज्यादा बढ़ा के और जे जे जमीन को बीमारी नहीं लगेगी तो आपके शरीर को भी नहीं लगेगी। दो। तो हाँ। बीमारी आई आई कहाँ से है? आई तो यही से है बीमारी ना, जमीन से आ जो रही हम है, खा रहे हैं खाने ना, से आ आप रही है। जो अपने रसोई में सामान रखा है ना, वो सारे सब में जहर है, केमिकल है। सब में इतने वो आप केमिकल निकालने के लिए आपने इतनी मशक्कत की, अब आपको कितने अवार्ड मिले सर फिर इसी रास्ते अब में? गिनती तो देखो है नहीं, लेकिन ये है कि राष्ट्रपति भवन से लेके कृषि मंत्रालय, हरियाणा सरकार, हर ठीक है, मतलब उसके कि बाद पूरा नाम इंडोनेशिया, जब मैं भारत सरकार ने मेरे को मेरे भरोसे भेजा था, वही भरोसा था, क्योंकि बाद 10 देशों का कंपटीशन था इंडोनेशिया में, हाँ जी। इनोवेशन कंपटीशन था वो, वे नए खोज करने वालों की आपस में भिड़ंत है वहाँ पे। अच्छा जी। तो भारत सरकार ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे को भेज दिया, तो मैं वहाँ से भी जीत के आ गया, तो सरकार का भरोसा भी काम रह गया। और ये बाहर भी जाके मैंने साबित कर दिया कि ये खोज है, ये सारी दुनिया की जरूरत है, कि मेरे की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब जो किसान जुड़े इनको पता चल गया, वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन कर कर बताते, कादर बन चल जाओ, ये कमाल कलम पे है, कमाल 505 है, ये डालो बाकी छोड़ दो। अब खुद किसान ही मेरा प्रचार कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरे खर्चे कम है, और मेरे खर्चे कम है तो किसान को सस्ता मिल रहा है। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵਰਦਾਨ ਦੇਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਰ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ। 505 ਕਮਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ आपका, बहुत बहुत बस मेरे आपने बाद हमें आप ਸਮਾਂ सबका दिया। हैं? ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਬਚੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਔਰ ਮੰਗਵਾਓ, ਔਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ मैं ਨੇ तो ਤਿਆਰ किसान को ਕੀਤੀ। एक जाते जाते एक सलाह और दे रहा हूँ, किसान को ना तो मेरे पे भरोसा करो क्योंकि मैंने बेचनी है, हाँ खुली जी। खुली बात, बिल्कुल। ना ही दुकानदार पे भरोसा करो क्योंकि उसको बेचनी है। हाँ जी। और अब सीजन आ गया तो आपके खेत में काले बैग लेके तो डॉक्टर साहब आएंगे, मैट्रिक पास, वो हाँ। डॉक्टर बनेंगे जी आपके फसल को, इसमें तो ये बीमारी आ गई जी, चाचा ये डाल दे, इसमें ये आ गया। आप पहली बात तो ये डर निकाल दो, ऐसे कुछ नहीं। बिल्कुल। पहली बात तो एक दूसरे से, किसान से सलाह लेके खेती करो। बिल्कुल। भी पिछले साल हमने क्या किया था, इस साल हम क्या करें,
हमारा हमारा खर्चा कैसे कम हो। और जब मेरी 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 बात करें तो मुझसे पूछे भी आपके मेरे एरिए में, आपको मेरी रिश्तेदारी में आस पास में कौन से किसान है जो आपके कई साल से यूज कर रहे हैं, हाँ जी, मेरे से उनका नंबर लो, नंबर उनसे लो, मिल के आओ, उनसे मिल के बात उनकी करो, भाई उनकी वाकई जमीन चीज, देख के आओ, उनकी जमीन भी उनकी देख के फसल आओ, देख के आओ, है ना। उनसे बात भी करो। देखो किसी पे भरोसा मत करो, दुनिया ये सारे अर्थ यानी कि पैसे के ऊपर टिकी हुई है। ओके। इससे बच के रहो, जितने और जितने आप बच के रहोगे। आप ये जो दिमाग में डर है ना पेस्टिसाइड का, ये डाल दो, जैसे अब अभी डराएंगे आपको, ताऊ ये डाल दे ये पत्तल पेट नहीं आएगी, ताऊ ये डाल दे फलाना कीट नहीं आएगा। पिछले साल का एग्जाम्पल किसानों के सामने है, सारे जहर डाले, पिछली पत्तल पेट आई, अंधाधुंध आई। ये मौसमी समस्याएं आनी आनी है। देखो मौसम को तो आप नहीं बदल सकते, पर्यावरण को आप नहीं बदल सकते। अब इस साल पिछले साल तेल सॉरी पत्तल पेट आ गई, तो वो भी कंट्रोल होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो दुकानदारों ने रखा हुआ था भाई अब की बार क्या आएगा, वो एक होता है तेला, भूरा तेरा रस चूसने वाला, उसका स्टॉक किया हुआ था, अरबों खरबों का स्टॉक धरा का धरा रह गया। अब कुदरत के आगे थोड़ी चलेगा आपका व्यापार, की आपकी माइंड सेट, कुदरत का माइंड सेट तो चलेगा ना। अरबों खरबों की दवाई रखी रखी रहेगी, बिकी नहीं बेचारों की। तो मैं कह रहा डर के बारे में मत डालो, पहले डालने से ये नहीं भी आपने आज डाल दिया तो 2 महीने के बाद पत्ता पेट बीमारी नहीं आएगी या कोई कीड़ा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम पे सोल्यूशन सबका है और सस्ता सोल्यूशन मेरे पास है। अगर बिल्कुल अगर कोई कहता है भी पत्ता पेट से इतने जहर हम डाल रहे हैं, बिल्कुल दूध है, बिल्कुल सस्ते में इलाज कर देंगे। और वो जहर नुकसान करके जाएगा आपकी फसल को, और मेरे प्रोडक्ट जब उसको इलाज करेंगे तो ताकत देके जाएंगे। बिल्कुल ये जो लागत लगाइए ना पैसे देके जाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।